Look at this. I am commanding this robot to go to a position that definitely exists in a 3D space. But see what happened. The robot has no idea why it failed. Is it broken or is the point unreachable for the robot? Actually, yes, but not for the reason you think. Actually, we commanded the robot in wrong space. Okay? तो इसका क्या मतलब है कि मतलब हम XYZ में रोबोट को कमांड नहीं कर सकते क्या? No. The reason is that we commanded the robot in a wrong coordinate system. We actually command it to go to XYZ position, but there is no way for the robot to understand that this XYZ position is actually out of my workspace. So let's deep dive why it happened. But the robot doesn't live in the Cartesian space. Actually, the robot live in configuration space. तो आप सब लोगों ने सुना होगा configuration space के बारे में. तो robot को Cartesian space समझ नहीं आता directly. Robot को समझ आता है configuration space. And let's move forward. And in today's video, by the end of this video, you will going to understand what is configuration space. क्या होता है configuration space? जब भी हम robotics start करते हैं, हर कोई first starting में हम configuration space पढ़ाता है. But I will help you to visualize configuration space क्या होता है, kinematics कैसे work करती है, and rigid body motions, how rigid body motions basically help you to connect everything. So by the end of this video you will get everything about it with proper visualization in my visualizer. So let's get started. Okay, let me ask you something. Where is robot in our space? So सब यही सोचते हैं कि ठीक है, I am asking for XYZ position, कि robot की क्या position है in XYZ space, and that is actually correct from our perspective. तो हम लोगों के लिए XYZ समझना बहुत easy है, but robot के लिए XYZ समझना it's not easy. It's very difficult. Why is that? Because robot does not live in Cartesian space. So for suppose if I have this object here in this room, so if I ask you the position of this object, you can tell me the position of this object from any corner of the room कि इसका x coordinate ये है, y coordinate ये है, z coordinate ये है, and on top of that आप इसका orientation भी बता सकते हो, right? But robot को ये समझ नहीं आता. Robot को Cartesian space समझ नहीं आता. Why? Because there are actuators inside robot, right? There are no Cartesian actuators, but there are joint actuators. दो मोटर्स होती हैं, उन मोटर्स को एंगल समझ में आता है, लाइक 10 डिग्री एंगल, 5 डिग्री एंगल. सो हमारे लिए XYZ बताना ज़रा इजी है, बट रोबोट के लिए कॉन्फ़िगरेशन स्पेस इज इजी टू अंडरस्टैंड, राइट? तो हमको इन दोनों के बीच में कुछ लिंक बनाना पड़ता है, राइट? बिकॉज अगर हमें किसी पॉइंट पे कोई टास्क करवाना है तो हमारे लिए जॉइंट एंगल्स में लाइक विजुअलाइज करना इज वेरी डिफिकल्ट, राइट? बट रोबोट के लिए जॉइंट एंगल में विजुअलाइज करना इज वेरी इजी. बट एंड इफेक्टर स्पेस में हमारे लिए विजुअलाइज करना बहुत आसान होता है, बट दैट इज नॉट द केस फॉर द रोबोट, करेक्ट? सो दैट इज व्हाई कॉन्फ़िगरेशन स्पेस कॉन्सेप्ट इज देयर. सो व्हाट डू यू मीन बाय दैट? सो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है एक 2 लिंक रोबोट, राइट? इट्स अ प्लेनर 2 लिंक रोबोट, राइट? सो अगर मैं इसका एक एंड इफेक्टर पोजिशन देखूं तो फॉर सपोज आई एम टेकिंग द लिंक लेंथ एज 1 here. Okay, so अभी मैं पूछूं कि इसका एंड इफेक्टर पोजीशन क्या है, तो 1 + 1 that is 2. So and anyone can tell me it's x2 y0 z0 that you can see here. That is the end effector position that you can see on my screen, correct? But इसके joint angles क्या है? Currently the joint angle था 0 0 degree. Now suppose मैं इसका joint angle change करता हूँ तो end effector position भी change होगा, right? So if I change the joint angle, so you can see the end effector point is changing. तो रोबोट को अगर मैं कोई एंड इफेक्टर पोजीशन कमांड करता, इट हैज टू फाइंड सम जॉइंट एंगल्स दैट आर कॉरस्पॉन्डिंग टू दोज वैल्यूज. सो सपोज मैं इसका एक्स चेंज करने का ट्राई करता हूं. So whenever I am trying to change the x of my robot, you can see it's basically finding a joint angles corresponding to those values. Okay, just try to understand this. It is always finding joint values corresponding to those end effector position. Now to make it very easy, अभी मैं एक सिंपल पेंडुलम लूंगा. इट्स अ सिंगल जॉइंट मोशन. ओके, अभी इसमें देखते हैं. अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका सिंगल जॉइंट है और ये -180 से 180 के बीच में मूव कर सकता है. सो इट्स अ लाइन इन कॉन्फ़िगरेशन स्पेस दैट इट कैन मूव फ्रॉम -180 to +180 सिंपल. सो यू कैन सी दैट आई कैन रोटेट दिस जॉइंट कंप्लीटली लाइक दिस एंड इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, राइट? एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट जो भी इसकी लिंक लेंथ है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है अलग अलग एक्सिस में. अगर मैं बिल्कुल y एक्सिस पे ले आऊंगा तो लाइक everything will be
Right, the complete length will be in y-axis, correct? That is will be my end effector position. So this is a simple one link mechanism. Now what happens अगर ये two link हो जाता है, now it's a planar two link mechanism. Robot, अभी इसमें अब कोई भी end effector position अगर मैं robot की change करता हूँ तो robot has to find the corresponding joint angles because robot को configuration space समझ में आता है हमेशा. तो configuration space is nothing that are the joint values. And why we need configuration space? क्योंकि भाई हमें कार्टेशियन स्पेस समझ में आता है ह्यूमंस को और रोबोट्स को समझ आता है जॉइंट स्पेस, दैट इज कॉन्फ़िगरेशन स्पेस. इन दोनों के बीच में कुछ लिंक बनाना हमें जरूरी है, नहीं तो हमारा काम डिफिकल्ट हो जाएगा, आइदर रोबोट वर्क विल बी डिफिकल्ट. तो दोनों के बीच में एक कनेक्शन बनाना जरूरी है. लाइक द सिमिलर एनालॉजी आई कैन गिव यू विद हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज. सो कंप्यूटर्स को जो समझ आती है वो लो लैंग्वेज समझ आती है, लो लेवल लैंग्वेज. हमें ह्यूमंस को हाई लेवल लैंग्वेज समझ आती है. तभी हमने डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेजेस बनाए ताकि ह्यूमन के लिए इंटरेक्शन इजी हो जाए विद कंप्यूटर. सिमिलरली विद रोबोट्स देयर हैज टू बी समथिंग सिटिंग इन बिटवीन दिस कार्टेशियन एंड द कॉन्फ़िगरेशन स्पेस बिकॉज एट द एंड वी हैव टू ऑपरेट दिस रोबोट्स, राइट? सो वी शुड गेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रोबोट. तो ये होता है हमारा कॉन्फ़िगरेशन स्पेस. नाउ टू अंडरस्टैंड कॉन्फ़िगरेशन स्पेस इन मोर डिटेल, now you can see on my screen कि I have put a obstacle here, right? Now ये जो आपको राइट साइड में जो विजुअलाइजेशन दिख रहा है ये कार्टेशियन स्पेस है. रोबोट इज सिटिंग इन दिस कार्टेशियन स्पेस, ये इसका एंड इफेक्टर है, करेक्ट? अभी नाउ दिस इज माय कॉन्फ़िगरेशन स्पेस. आई हैव मेड अ सी मैप. तो नाउ यू जस्ट सी कैसे ये सी मैप चेंज होता है. तो आई विल चेंज θ1. नाउ यू कैन सी जैसे ही मैं ऑब्स्टेकल से अवे जा रहा हूँ ये पॉइंट भी अवे जा रहा है. तो बेसिकली द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर द टू जॉइंट एंगल्स θ1 एंड θ2. तो ये अवे जा रहा है. यू कैन सी इट इज गोइंग अवे. नाउ सपोज अगर मैं ये रेड वाला एरिया क्रॉस कर दूं, अभी लाइक आई विल गिव यू एन एग्जांपल. अभी मैं इस एरिया में हूं और मैं जॉइंट 2 को रोटेट करता हूं. सो नाउ यू कैन सी दैट इट इज कोलाइडिंग विद द ऑब्स्टेकल. क्लियरली इट इज विजिबल एंड यू ऑन द सी स्पेस भी आप देख सकते हो कि इट इज कोलाइडिंग विद द ऑब्स्टेकल. अब सपोज मेरे को अगर मैं इस ग्रीन पॉइंट को थोड़ा लेफ्ट में मूव कर दूं तो यू कैन सी कि मैं फ्रीली मूव कर सकता हूं मेरे जॉइंट 2 को. तो मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ा सा इसको यहां मूव कर दूंगा. नाउ व्हाट हैपेंड इज मैंने बेसिकली जो कॉन्फ़िगरेशन स्पेस में ऑब्स्टेकल एरिया था उसको अवॉइड कर दिया. अब मेरा जॉइंट 2 पूरा फुल कॉन्फ़िगरेशन मूव कर सकता है. सी -180 to +180 विदाउट एनी ऑब्स्टेकल ये मूव कर सकता है. सो दिस इज आवर कॉन्फ़िगरेशन स्पेस, राइट? अभी मैं इस ऑब्स्टेकल को छोटा बड़ा भी करके लाइक आई कैन ट्राई कि ऑब्स्टेकल की पोजीशन चेंज करूं, या फॉर सपोज ऑब्स्टेकल को अगर मैं छोटा कर दूं तो यू कैन सी मेरा जो कॉन्फ़िगरेशन स्पेस में ऑब्स्टेकल एरिया है वो कम हो रहा है या बढ़ रहा है. सी नाउ इट इज थिनिंग. तो बेसिकली जब भी हम एंड इफेक्टर पोजीशन कोई भी कमांड करते हैं तो रोबोट बेसिकली ट्राइज टू फाइंड अ कॉन्फ़िगरेशन अ सी फ्री स्पेस. ओके, सो ये जो रेड वाला है इसको हम बोलते हैं सी ऑब्स्टेकल स्पेस, जो बुकिश लैंग्वेज होती है थोड़ी की सी ऑब्स्टेकल सी फ्री. तो रेड एरिया जो है वो हमारा है सी ऑब्स्टेकल स्पेस और जो बाकी बचा वो एरिया है वो सी फ्री स्पेस. तो जो भी हमारे पाथ प्लानिंग एल्गोरिथम्स हैं, व्हाटएवर मोशन प्लानिंग एल्गोरिथम्स वी हैव, व्हाट दे डू इज व्हेनेवर वी गिव देम अ सर्टेन गोल पॉइंट दे ट्राई टू फाइंड अ कंटिन्यूअस कर्व इन द सी फ्री स्पेस. वो सी फ्री स्पेस में एक कंटिन्यूअस पार्ट ढूंढने का ट्राई करता है, जैसा कि यहाँ पे हो रहा है. जब मैंने जॉइंट 1 को ऑब्स्टेकल से बाहर कर दिया तो जॉइंट 2 कैन मूव फ्रीली. यू कैन सी इट ऑन द फिजिकल स्पेस एज वेल एज ऑन द कॉन्फ़िगरेशन स्पेस. दोनों में आप देखोगे. तो अब अगर मैं ऑब्स्टेकल को नीचे ले आऊंगा, अब सपोज मैं ऊपर ले आता हूँ, राइट? ओके, अब यू कैन सी कि मेरा सी फ्री स्पेस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, राइट? अब मैं इसको थोड़ा ऊपर भी ला सकता हूँ. नाउ माई सी फ्री स्पेस इज टू मच, राइट? सो सारे पाथ प्लानिंग एल्गोरिथम्स इंटरनली यही कर रहे हैं, वो फाइंड कर रहे हैं एक कंटिन्यूअस पाथ, लाइक हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं जैसे इन द कॉन्फ़िगरेशन स्पेस. आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड कि कॉन्फ़िगरेशन स्पेस क्या होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है कॉन्फ़िगरेशन स्पेस. सो इन वन लाइन, कॉन्फ़िगरेशन स्पेस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज योर रोबोट लिव्स इन कॉन्फ़िगरेशन स्पेस एंड टू कमांड द रोबोट, योर रोबोट शुड find a continuous path in configuration space. But we can't command directly in configurations. We can command actually, but that does not make sense because मेरे को पता नहीं इस joint angles पे क्या end effector position होगा, right? So मैं end effector position देता हूँ human की side से and वो configuration space में find करते हैं. सारे RRT star है, जैसे RRT है, A star है, किसी भी रोबोट में यही होता है. ओके, सो आई थिंक अब आपको सी स्पेस तो समझ आ गया कि हमारा जो रोबोट है दैट सिट्स इन सी स्पेस, दैट डज नॉट सिट्स इन कार्टेशियन स्पेस. बट नाउ द थिंग इज
कि इन दोनों के बीच में कनेक्शन कैसे होता है, लाइक जॉइंट एंगल से एंड इफेक्टिव पोजीशन कैसे आती है, एंड इफेक्टिव पोजीशन से जॉइंट एंगल्स कैसे आता है. सो हियर द काइनेमैटिक्स कम्स इनटू पिक्चर. सो फॉरवर्ड काइनेमैटिक्स इज द स्टडी which actually converts the joint angles, which actually maps from joint angles to end effector position. And inverse kinematics is just opposite. आप end effector position दो, जैसे हम human end effector position देंगे, robot will find the joint configuration corresponding to that end effector position. Now फॉरवर्ड इनवर्स काइनेमेटिक्स समझने से पहले या रोबोटिक्स में आगे बढ़ने से पहले देयर इज अ टॉपिक कॉल्ड रिजिड बॉडी मोशन, रोटेशंस एंड फ्रेम्स. दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि अगर आपको रोटेशंस नहीं समझ आएंगे, फ्रेम्स नहीं समझ आएंगे, तो आप आगे बढ़ नहीं पाओगे. एंड मैं आपको बताऊंगा क्यों. सो लेट्स स्टार्ट विद रोटेशन एंड फ्रेम्स फर्स्ट. पहले हम समझते हैं कि रोटेशन एंड फ्रेम्स होता क्या है. सो नाउ यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन कि यहाँ पे मैं 3 फ्रेम्स यूज कर रहा हूँ बेसिकली, ए, बी एंड सी. ओके, सो अभी मैं आपको जो ए है वो मेरा फिक्स फ्रेम है, जो सबसे मेन फ्रेम है. ओके, अभी अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो ये है मेरा बी फ्रेम विच इज रोटेटिंग अबाउट जेड ऑफ ए, राइट. ये है मेरा बी फ्रेम. और आई ऑल्सो हैव अ सी फ्रेम जो कि ये वाला फ्रेम है. ओके, सो देयर आर 3 फ्रेम्स है, राइट. तो हम बेसिकली देखेंगे कि रोटेशन फ्रेम कैसे एग्जिस्ट करते हैं, राइट. सो अभी ये जो रोटेशन हो रहा है ये z के अबाउट हो रहा है. सो यू कैन क्लियरली सी ये मेरा z एक्सिस है a फ्रेम का, राइट. a फ्रेम के z के अबाउट में रोटेट कर रहा हूँ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. दिस इज b फ्रेम एंड b एंड c अभी अटैच है एक दूसरे से, तो दोनों साथ में मूव कर रहे हैं. ये मैं y के अबाउट रोटेट कर रहा हूँ एंड देन मेरा x के अबाउट रोटेट हो रहा है. अभी मेरा c फ्रेम है, c फ्रेम भी अपने z के अबाउट रोटेट हो रहा है, देन अपने y के अबाउट रोटेट हो रहा है एंड देन अपने ही x के अबाउट रोटेट हो रहा है, राइट. तो ये तीनों फ्रेम रोटेट हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर. तो अभी इनमें हम बेसिकली रिलेशन कैसे निकालेंगे. तो बेसिकली देयर इज अ रोटेशन मैट्रिक्स दैट एग्जिस्ट फॉर all of these. So if you see here, this is the rotation matrix from A frame to B frame. अब रोटेशन मैट्रिक्स क्या होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल जितनी भी रोटेशन मैट्रिसेस होती हैं दैट सिट्स इन अ SO3 स्पेस, दैट इज स्पेशल ऑर्थोगोनल ग्रुप ऑफ 3 डायमेंशन. वहां पे सिट करती हैं. इसमें बेसिकली 3 वेक्टर्स होते हैं एंड दीज 3 आर यूनिट वेक्टर्स. तो फर्स्ट जो कॉलम इसका होता है वो बताता है हमें कि एक्स एक्सिस के अबाउट क्या एंगल है. सेकंड जो बताता है वो वाई के, एंड थर्ड जो बताता है वो जेड एक्सिस के अबाउट आपको रोटेशन एंगल बताता है ऑलवेज. अभी हमारा ए से बी अगर हमें जाना है तो देयर इज अ रोटेशन मैट्रिक्स दैट एग्जिस्ट फ्रॉम ए टू बी. देन मैं बी से सी में जाऊंगा तो देयर इज अ रोटेशन मैट्रिक्स दैट एग्जिस्ट फ्रॉम बी टू सी, जो उनके एंगल्स पे डिपेंड करती है. नाउ अगर मेरे को ए से सी का एंगल निकालना है, राइट, तो उसके लिए फॉर्मूला होगा दैट इज द मल्टीप्लीकेशन, कि ए से बी का मल्टीप्लीकेशन क्या है, बी से सी का मल्टीप्लीकेशन क्या है. दीज आर ओनली द फ्रेम्स दैट आर यूज्ड इन रोबोटिक्स. कि हमें चाहे हमारे 5 फ्रेम्स एग्जिस्ट करते हैं रोबोट में, वी जस्ट मल्टीप्लाई देम फ्रॉम स्टार्ट टू एंड एंड हमें लास्ट वाले का वैल्यू मिल जाएगा. तो दिस इज द फाइनल रोटेशन मैट्रिक्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन ए टू सी. एंड अगर मैं इसको चेंज करूंगा तो यू कैन सी कि ये चेंज हो रही है रोटेशन मैट्रिक्स. यू कैन क्लियरली सी ऑन माई स्क्रीन. अगर मैं इसको भी चेंज करूंगा तो भी ये रोटेशन मैट्रिक्स चेंज होगी. यू कैन सी दिस रोटेशन मैट्रिक्स इज चेंजिंग फॉर बोथ. So this is a rotation matrix. Now rigid body motion देखते हैं. What is rigid body motion? रोटेशन हमें समझ आ गया. अब हम देखेंगे रिजिड बॉडी मोशन. अभी यहाँ पे रोटेशन मैट्रिक्स भी आएगी और ट्रांसलेशन वेक्टर भी आएगा इन अ सिंगल मैट्रिक्स. सो देयर इज अ 4x4 मैट्रिक्स जो एग्जिस्ट करती है हमें, इसको हम बोलते हैं होमोजेनियस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स. अभी इसको होमोजेनियस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्यों बोलते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे. बट दिस फॉर्म इज अ 3x3. इसमें जो पार्ट रहता है वो रोटेशन मैट्रिक्स का रहता है एंड लास्ट 3 कॉलम जो रहता है वो ट्रांसलेशन रहता है और लास्ट 4 जो रो रहती है वो स्केलिंग की रहती है. जनरली हम स्केलिंग वाला पार्ट रोबोटिक्स में यूज नहीं करते, कंप्यूटर विजन साइड में इट यूजेस मोर. बट अब मैं आपको बताऊंगा. अब मैं यहाँ पे 3 फ्रेम लिए हैं. ओके, एक वर्ल्ड फ्रेम है, एक ए फ्रेम है, एक बी फ्रेम है, जस्ट और बेस फ्रेम यू कैन एग्जिट. तो अभी मैं यहाँ पे ट्रांसलेशन करके दिखाता हूँ. सी मेरा वर्ल्ड फ्रेम था, मैंने अपने बी फ्रेम को उसके रिस्पेक्ट में मूव कर रहा हूँ, एक्स में मूव कर रहा हूँ, वाई में मूव कर रहा हूँ, विद रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड फ्रेम मूव कर रहा हूँ, राइट, और जेड में मूव कर रहा हूँ. नाउ देयर इज अनदर सी फ्रेम दैट विल मूव विद रिस्पेक्ट टू बी. तो अभी देखो, अब ये बी के रिस्पेक्ट में सी मूव हो रहा है, इसके एक्स में मूव हो रहा है एंड इसके जेड में मूव हो रहा है, रोटेशन भी हो रही है यहाँ पे, ठीक है. नाउ दिस इज अ रिजिड बॉडी रोटेशन. नाउ अगर मेरे को ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स निकालना है तो इट्स द सेम केस जैसे मैंने रोटेशन मैट्रिक्स निकाली थी, कि मैं जितना ट्रांसलेट करूंगा वही सेम मेरे ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स में आ जाएगा एंड द सेम फॉर्मूला आई कैन यूज हियर. So you can see the frame composition will be T A to C. अगर मेरे को A से C निकालना है that will be A to B multiplied by B to C. Directly मैं multiply कर सकता हूँ. So these are rigid body motion. Rigid body motion means एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम से तीसरे फ्रेम में जाना है, तो I just have to multiply this. Okay.
सो आई होप आपको ये तो अंडरस्टैंड हो गया होगा यहाँ पे कि क्या मेरा ट्रांसलेशन होता है, क्या मेरा रोटेशन होता है। विजुअली वी कैन सी कि ये कैसे आपस में एक दूसरे से इंटररिलेटेड है, कैसे मेरी लाइव ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स चेंज हो रही है। सी लाइव इट इज चेंजिंग द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, करेक्ट। नाउ सो आई होप कि ये सब तो आपको समझ आ गया होगा, आई होप सो। अभी लाइक फॉर योर रेफरेंस हम आगे फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स और इनवर्स काइनेमेटिक्स करने वाले हैं। सो जस्ट टू शो यू आई वांट टू शो कि ये कैसे एक्चुअली में वर्क करता है। ओके तो अभी फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स क्या होती है कि जॉइंट एंगल से हमें एंड इफेक्टिव पोजीशन निकालना है, राइट। तो वी आर गेटिंग सर्टेन, सो सपोज मैं यहाँ पे कुछ भी एंगल दे देता हूँ, तो हम वेरीफाई करके देखते हैं पहले। सो आई हैव अ स्क्रिप्ट जो मैंने सेम प्लेनर रोबोट के लिए रखी थी, बेसिकली मैं उसको रन करके देखता हूँ। ओके सो यू कैन सी कि ये मेरा 3 लिंक रोबोट है यहाँ पे एक, ये पाइथन स्क्रिप्ट है। ओके दिस इज नॉट अ स्क्रिप्ट दैट इज रनिंग हियर, दिस इज अ सेपरेट पाइथन स्क्रिप्ट। सो इसमें बेसिकली मैंने 3 लिंक रोबोट लिया, तो सेम मैं 3 लिंक रोबोट लेता हूँ। आई विल सी कि मैंने उस कोड में क्या एंगल्स यूज करें, 45, 30 एंड -20 एंड लिंक लेंथ इज 1। सो लिंक लेंथ 1 करते हैं। फर्स्ट एंगल इज 45 डिग्री, सेकेंड एंगल विल बी माई 30 डिग्री एंड थर्ड एंगल विल बी -20 डिग्री। एंड हम वेरीफाई करते हैं कि मेरा एंड इफेक्टर पोजीशन सेम आ रहा है। सो माय एंड इफेक्टर पोजीशन इज 1.54 एंड 2.49 एंड व्हाट इज माय एंड इफेक्टर पोजीशन हियर, इट्स 1.539, 2.4992। तो यू कैन सी कि ये वेरीफाई हो रहा है कि जो मैंने कोड में अपना यूज करा है एंड जो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, दोज टू आर एक्चुअली वेरीफाइंग विद ईच अदर। दैट इज बेसिकली फॉरवर्ड। सो हमने आज क्या सीखा, सो बेसिकली वी अंडरस्टूड कि हमारा जो रोबोट है वो कॉन्फ़िगरेशन स्पेस में सिट करता है। हमारा रोबोट कार्टेशियन स्पेस या हमारे रूम वाले स्पेस में सिट नहीं करता। जो पाथ प्लानर, मोशन प्लानर सब पाथ फाइंड करते हैं वो बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन स्पेस में एक फ्री पाथ फाइंड कर रहे होते हैं, जॉइंट एंगल्स फाइंड कर रहे होते हैं फ्री स्पेस में। एंड देन हमने सीखा कि रिजिड बॉडी मोशन, रोटेशन एंड फ्रेम क्या होता है, काइनेमेटिक्स कैसे वर्क करती है, कैसे फ्रेम्स मल्टीप्लिकेशन होता है और हमें एंड इफेक्टर वैल्यू मिलती है, कैसे रिजिड बॉडी मोशन वर्क करता है, ट्रांसलेशन होता है, ओरिएंटेशन होता है और कैसे मैट्रिक्स चेंज होती है। ओके सो इन सबका विजुअलाइजेशन आई होप यू गेट इट। रिलेटेड फॉर्मूलाज एंड जो लिंक्स है उसका मैंने एक शीट बना के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। एंड लाइक इफ यू थिंक कि इफ आई कैन इंप्रूव दिस विजुअलाइजेशन इन एनी वे, प्लीज कमेंट डाउन योर थॉट्स सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको ये वाला पार्ट समझ नहीं आ रहा। नाउ बेस्ड ऑन आई एक्चुअली रीड एवरी कमेंट इफ यू राइट, एंड my next topic will be mostly concentrated on the comments I got. For example, you think some part is difficult, that you think कि कोई और part थोड़ा difficult है understand करना, so just let me know. I will discuss that part. I will visualize that part very clearly. Thank you for watching the video. See you in the next video. Please comment your thoughts down. Bye bye.